assembly, testing, marking, and packaging operations complements America's drive to produce the most advanced chips domestically. Today marks India's entry into the global semiconductor supply chain as a manufacturing nation. This is just the beginning. With 10 semiconductor projects worth $19 billion underway across India. That is a direct testament to your Prime Minister's leadership, to his vision, and to his ability to secure the future for India and for our global partners, including the United States. Gujarat's leadership is incentivizing semiconductor projects. From Sanand to Dholera, it sets an example for your entire country. The enthusiasm I've heard about at Vibrant Gujarat and the SemiConnect events shows that government, industry, and academia are aligned in making this state a successful model of production. We are beyond proud of Micron being here, and in just the last few years, they have achieved incredible results. The United States stands ready to participate in this growth. American companies are watching closely, and many are eager to explore opportunities to do business right here in Gujarat. President Trump cares deeply about our relationship. The next 3 years of our administration enable our two nations to tap into the limitless potential that exists. In closing, let me return to where I began. This facility represents the future. It represents American technology leadership working hand in hand with Indian manufacturing excellence. It represents supply chain resilience built on trust between our two great democracies. The chips packaged in this facility will power devices around the world. More importantly, the partnership this facility represents will power our shared prosperity and security for generations to come. Congratulations to Micron, to the government of India, to Gujarat, to everyone who made it possible, especially your great Prime Minister. The United States is proud to stand with you as partners in building technology that will shape the future for both of our nations and the world. Thank you. Thank you, Mr. Ambassador, for your words and for your support towards strengthening the US-India partnership. Behind every great mission is a relentless architect of policy. To share the roadmap of our digital sovereignty, I invite Honorable Union Minister Shri Ashwini Vaishnaw, sir. Welcome, sir. आत्मनिर्भर भारत के संकल्प पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कर्मठ लोकप्रिय गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, ऊर्जावान नौजवान उप मुख्यमंत्री हर्ष भाई सांघवी जी, एम्बेसडर सर्जियो गोर जी, संजय गुरशरण, द एंटायर माइक्रॉन टीम, उपस्थित सभी विधायक बंधु, सांसद बंधु और जो विशेषकर छात्र उपस्थित है, आप सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत नमस्कार। केम छो? केम छो? केम छो? अब ठीक है, ये जोश होना चाहिए, तभी जाके चिप्स बनेगी यहाँ पे। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है साथियों। जो सपना कुछ वर्षों पहले देखा था, देश ने तो 6 दशकों से ये सपना देखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 दशक पहले जो नींव रखी, जो सपना देखा, वो आज संपूर्ण हुआ है। और जिस तेजी के साथ काम हुआ है, जून 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूवल दिया। सितंबर 2023 में इस प्लांट की फाउंडेशन हुई और आज फरवरी 2026 में प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। 900 दिन में फाउंडेशन से प्रोडक्शन। मोदी है तो मुमकिन है क्या? 900 दिन में
फाउंडेशन से प्रोडक्शन, मोदी है तो ये संभव हो पाया क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिलेंटलेस फोकस और माननीय मुख्यमंत्री जी और आपकी टीम लगातार सपोर्ट। और मैं संजय जी आपसे माफ़ी भी चाहूँगा, बहुत मैं पुश करता था आप सबको, लेकिन इसीलिए पुश करता था कि आज ये दिन हम सब के सब मिलके देखें। साथियों, इस प्लांट में मेमोरी चिप्स बनेगी और हम सब जानते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। आज जो भी हमारे पास मैन्युफैक्चर होता है, चाहे ये कैमरा हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, सर्वर हो, हर चीज़ में चिप्स की ज़रूरत होती है। और मेमोरी चिप्स मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में, सर्वर्स में, मशीन्स में, सब चीज़ों में लगेगी। आज भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में विश्व के नक्शे पर अपना स्थान बना लिया है। भारत में सेमीकंडक्टर डिज़ाइन का भी बहुत बड़ा इकोसिस्टम है और ये इकोसिस्टम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अभी हाल ही में एक के बाद एक कंपनियों ने सबसे एडवांस चिप्स, 2 नैनोमीटर की चिप्स भारत में डिज़ाइन करने लगे हैं और अब भारत में की हुई डिज़ाइन की हुई चिप्स भारत में ही मैन्युफैक्चर भी होगी। और आने वाले समय में पूरा इकोसिस्टम भारत में आएगा। मशीनें भी भारत में बनेंगी, केमिकल्स भी भारत में बनेंगे, गैसेस भी भारत में बनेगी। और ये सब संभव इसलिए हो पाया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से, आरंभ से एकदम क्लियर मार्गदर्शन दिया कि पूरा इकोसिस्टम भारत में तैयार करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर कदम पर अपने मार्गदर्शन में, अपने गाइडेंस में हमेशा कहा कि ये 2-4 साल का प्रोग्राम नहीं है, 20 वर्षों की तैयारी करनी है हमें और पूरे इकोसिस्टम को भारत में लाना है। आज की ये शुरुआत उस उज्जवल भारत की एक नींव है साथियों, और ये जिस नेतृत्व के कारण संभव हो पाया, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब खड़े होकर बहुत जोर करतल ध्वनि से उनका सम्मान करेंगे। बहुत बहुत इस एक दशक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को 6 गुना बढ़ाया है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स को 8 गुना बढ़ाया है। आज मोबाइल फ़ोन भारत के टॉप एक्सपोर्टेड आइटम्स में से एक हो चुके हैं। और अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट में सेमीकॉन 2.0 की भी घोषणा कर दी है। तो साथियों, नौजवानों, जो 15 से 30 वर्ष की उम्र के आप हो, जन भारत आप लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एक मजबूत नींव खड़ी कर रहे हैं। आज 315 यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स आसाम से लेके गुजरात तक, केरल से लेके जम्मू कश्मीर तक चिप्स डिज़ाइन कर रहे हैं, चिप्स डिज़ाइन कर रहे हैं। और स्टूडेंट की डिज़ाइन की हुई चिप्स आज मैन्युफैक्चर हो रही है, टेस्ट हो रही है, यूज़ हो रही है। दुनिया में बहुत कम यूनिवर्सिटी है मेरे नौजवान दोस्तों जहाँ पर स्टूडेंट बोल सके कि मैंने चिप डिज़ाइन की है और वो चिप मैन्युफैक्चर हुई है और उस चिप के डिज़ाइनर के तौर पे मैं ये कैपिटल वीसी फंडिंग मांगने आया हूँ। बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ऐसा संभव हो पाता है। ये विजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए रखा है, आप सबके लिए ये फाउंडेशन रखी है। मैं ऐसे नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस यात्रा में जितने भी मेरे साथ जुड़े उन सबको मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस विजन से भारत विश्व में प्रमुख सेमीकंडक्टर नेशन बन के रहेगा। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अश्विनी वैष्णव जी, भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को वैश्विक हेडलाइन बनाने के लिए।
अब बात उस माटी की जहां इस बड़े सपने ने अपनी जड़ें जमाई है। एक ऐसा प्रदेश जिसने अपनी उद्यमिता और अटूट संकल्प से दुनिया को दिशा दिखाई है। वाइब्रेंट गुजरात के इसी विकास रथ के सारथी जिनके कुशल नेतृत्व में आज गुजरात एक वैश्विक पहचान बन चुका है। मैं बहुत ही आदर के साथ गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वे अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। माइक्रोन के एटीएमपी फैसिलिटी और कॉमर्शियल प्रोडक्शन के उद्घाटन अवसर पर हम सब का मार्गदर्शन करने पधारे विश्व नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, भारत सरकार के आईटी तथा रेलवे मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, मेरे साथी उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश विश्वकर्मा जी, मेरे साथी मंत्री श्री अर्जुन भाई मोढवाडिया, माइक्रोन के चेयरमैन, प्रेसिडेंट एंड सीईओ श्री संजय मेहरोत्रा जी, भारत में यूएस के राजदूत श्री सर्जियो गौर, माइक्रोन कंपनी के ग्लोबल ऑपरेशन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट श्री मनीष भाटिया जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री गुरुशरण सिंह, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट श्री अप्रैल अनरेजन, उपस्थित सभी अतिथिगण और प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज गुजरात विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में ग्लोबल मैप पर चमका है। साणंद और धौलेरा सेमीकंडक्टर फैसिलिटी प्लांट इसके मुख्य केंद्र एपी सेंटर बनके उभरे हैं। आज का अवसर इस बात का प्रमाण है कि श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब जैसी विजनरी लीडरशिप है से ही लार्ज स्केल और जेट स्पीड के इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। गुजरात के विकास की यह यात्रा आदरणीय श्री मोदी साहब के अथाक परिश्रम के साथ ही राज्य की उद्यमिता और हौसले की यश गाथा भी है। माइक्रोन सेमीकंडक्टर प्लांट का लोकार्पण साणंद 2.0 की नींव रखने का सुनहरा अवसर भी है। हम सबको अटूट भरोसा है कि आने वाले वर्षों में साणंद धौलेरा का यह क्लस्टर विश्व का सेमीकंडक्टर हब बनेगा। यह ऐतिहासिक क्षण गुजरात में केवल नई इंडस्ट्रीज की शुरुआत नहीं है, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व के देशों के लिए विश्वासु मित्र की नए भारत की पहचान है। जून 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वॉशिंगटन मुलाकात के दौरान माइक्रोन ने इस सेमीकॉन प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की थी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा 15 जून 2023 को इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने के सिर्फ 24 आवर्स में ही गुजरात सरकार ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। मेरा मानना है कि यह अभूतपूर्व गति केवल गुजरात में ही संभव है, क्योंकि गुजरात माननीय प्रधानमंत्री जी के स्थापित किए हुए बेंचमार्क्स के साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर गुजरात के मंत्र के साथ काम करता है। आज का यह सेमीकंडक्टर प्लांट भी आत्मनिर्भर भारत के मंत्र का साकार स्वरूप है। सेमीकंडक्टर चिप्स आज के डिजिटल युग की रीढ़ है। मोबाइल, ऑटोमोबाइल, डिफेंस, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हर क्षेत्र में इनकी आवश्यकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत और पीएलआई योजना लागू की है। मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम जैसी पहलों से आज भारत विश्व में सेमीकंडक्टर का एक बड़ा प्लेयर बनकर उभरा है।
मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड यह चरितार्थ हो रहा है। गुजरात तो हमेशा से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीन पर उतारने में अग्रिम रहा है। टेक्सटाइल, डायमंड, फार्मास्यूटिकल तथा पेट्रोकेमिकल्स जैसे परंपरागत क्षेत्रों में लीडर रहने वाला गुजरात अब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, एआई, सेमीकंडक्टर जैसे इमर्जिंग सेक्टर में भी अग्रसर बनने जा रहा है। गुजरात वर्ष 2022 में सेमीकंडक्टर पॉलिसी की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हाल ही केंद्रीय बजट में भी सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई है। साणंद में माइक्रोन का यह इन्वेस्टमेंट सिर्फ औद्योगिक परियोजना ही नहीं, युवाओं के सपनों का इन्वेस्टमेंट और लोकल से ग्लोबल की यात्रा का सशक्त उदाहरण है। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का जो संकल्प दिया है, यह संकल्प आत्मनिर्भर, ग्लोबल लीडरशिप और इनोवेशन में भी अग्रणी बनने का संकल्प है। 2047 में जब हम अपनी स्वतंत्रता के 100 साल पूरा करेंगे, तब भारत ग्लोबल टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विश्व के सामने गौरव के साथ खड़ा होगा। यह विश्वास गुजरात की धरती से आज और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। फिर एक बार माइक्रोन के इस प्लांट के प्रारंभ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। वाकई गुजरात सिर्फ भारत का औद्योगिक द्वार ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की एक मजबूत आधारशिला है। Ladies and gentlemen, they say that at the heart of every great advancement lies a simple grain of silica. But today, at Micron, we have added something more to that grain. We have added the aspiration of 1.4 billion people. We have added the grit of Indian engineers, and we have added the unyielding vision of a leadership that refused to let India just be a consumer of technology, but a creator of it. This shipment we will see today is not just a logistics milestone. It is a passport for Indian innovation, ready to travel the world. It is the moment the phrase "Made in India" meets the highest precision of global silicon. With a strong track record and immense global footprint, Micron is now building something truly significant in India. And today, in conjunction with the grand opening of the site, Micron now presents Dell Technologies with its first shipment of Made in India memory modules. May I respectfully invite Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Mr. Sanjay Mehrotra to join us on the stage for the technology milestone presentation and the ceremonial first shipment to Dell Micron's global customer. Let's welcome Manish Gupta, President and Managing Director, Dell Technologies India, to the stage. Welcome, sir. And now, a moment that is made possible by Micron, signifying India's entry into the global semiconductor ecosystem. The first commercial shipment from Micron Pioneer to our customer. This isn't just a box. It's a Made in India promise traveling across the globe. Let's applaud and cheer because Micron did it. Micron proved it. India made it. And before the main address, may I request Micron Chairman, President and CEO, Mr. Sanjay Mehrotra, to present a memento to the Honorable Prime Minister, sir. Honorable Prime Minister, sir, please accept this as a small token of our respect for your role in this revolution.
और अब एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने विश्व के संशय वाई इंडिया को भारत के अड़िग संकल्प वाई नॉट इंडिया में बदल दिया। एक ऐसे युग दृष्टा जिनके आत्मनिर्भर भारत के विजन ने आज इस सिलिकॉन क्रांति को मुमकिन बनाया है। अत्यंत आदर और गौरव के साथ मैं भारत के गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सादर निवेदन करती हूं कि वे इस सभा को संबोधित करें। पूरा देश आपको सुनने के लिए उत्सुक है। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्र में मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा जी, भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर जी, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, विश्व की सबसे बड़ी और सफल एआई समिट के बाद आज हम यहां एक और ऐतिहासिक पड़ाव के साक्षी बन रहे हैं। एआई समिट ने जहां दुनिया को भारत के एआई सामर्थ्य से परिचित कराया, वहीं आज का ये दिन टेक्नोलॉजी लीडरशिप को लेकर भारत के कमिटमेंट का एक और प्रमाण है। साथियों, बहुत दूर की बात नहीं है, 10-11 वर्ष पहले तक भारत में डेटा और चिप की चर्चा बहुत ही क्लोज सर्कल्स में ही होती थी। जब टेक्नोलॉजी की बात आती थी तो अक्सर हमारी चर्चा लार्जली आईटी सर्विसेज के इर्द गिर्द ही रहती थी। और आज देखिए, सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाने वाला भारत अब हार्डवेयर के क्षेत्र में भी अपनी पहचान को सशक्त कर रहा है। आज साणंद में हम नए भविष्य का उदय होते देख रहे हैं। माइक्रोन की इस ATMP फैसिलिटी में कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत ग्लोबल टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन में भारत की भूमिका को मजबूत करने वाली है। साथियों, आज भारत बहुत तेजी से ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का हिस्सा बन रहा है। मैं माइक्रोन की पूरी टीम को, भूपेंद्र भाई के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार को, सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, माइक्रोन की ये फैसिलिटी भारत के नए मिजाज की भी, उसका भी एक शानदार उदाहरण है। आज का भारत पॉलिसी से लेकर प्रोडक्शन तक किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, वो यहां दिखता है। आप याद करिए, जून 2023 इस फैसिलिटी के लिए MOU साइन हुआ। इसके बाद सितंबर 2023 साणंद में इस फैसिलिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग हुई
फिर फरवरी 2024 यहां पायलट फैसिलिटी में मशीनें लगने लगी और आज फरवरी 2026 में इस फैसिलिटी में कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। साथियों, जो भी इस सेक्टर को देखते हैं, समझते हैं, वो इस स्पीड के मायने जान सकते हैं। दुनिया के विकसित देशों में भी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जैसे टैक्स समझौतों को 3 से 5 साल लग जाते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, लेकिन भारत ने कुछ ही महीनों में इसको क्लियर कर दिया। जब नीयत साफ हो, निष्ठा देश के तेज विकास के प्रति हो, तब नीति भी स्पष्ट बनती है और निर्णयों में भी गति आ ही जाती है। साथियों, मैं माइक्रोन की लीडरशिप का भी आभार व्यक्त करता हूं। मेरे मित्र संजय को मैं जितनी बधाई दूं उतनी कम है। आज मुझे संजय ने चौंका दिया, क्योंकि संजय जब मिलते हैं तो बहुत कम बोलते हैं। आज भाषण सुनकर के मुझे एक और संजय का परिचय हो गया। उन्होंने भारत पर निरंतर भरोसा किया। मैं भाई संजय जी की विशेष प्रशंसा करूंगा। मुझे याद है कि बीते वर्षों में जब भी हम मिले हैं तो ये भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को लेकर बहुत ही अधिक उत्साहित रहे हैं। आज इनकी लीडरशिप, भारत पर इनका भरोसा यहां एक नई ऊंचाई प्राप्त करता दिख रहा है। भारत में नियुक्ति के बाद एम्बेसडर गौर भी शायद पहली बार गुजरात आए हैं और वो विधिवत रूप से एम्बेसडर बनने के बाद आज मेरी पहली मुलाकात है और वो भी मेरी कर्मभूमि में हो रही है। मुझे विश्वास है कि आप हमारी मेहमान नवाजी का भरपूर आनंद लेंगे। साथियों, माइक्रोन की ये फैसिलिटी, आज का ये कार्यक्रम, ये भारत और अमेरिका के बीच मजबूत सहयोग और साझेदारी का भी प्रमाण है। खासतौर पर एआई और चिप जैसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत और अमेरिका की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरा विश्व मानवता के बेहतर भविष्य से जुड़ी इन दोनों टेक्नोलॉजीज की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना चाहता है और दुनिया की 2 बड़ी डेमोक्रेसीज, भारत और अमेरिका, इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। एआई समिट के दौरान भारत और अमेरिका के बीच हुआ